Hello students, so today we are going to discuss power in three-phase circuits, okay. Then we are going to solve numericals, fine, okay. So let us see what is power in three-phase circuits or what is the formulas of power in three-phase circuit, okay. Okay, first before that you should know, okay, we have discussed in the last lecture about star and delta connections, okay. So you should know the formulas very well, okay. So if you know for star connection or in star connection, IL is equals to IPH and VL is equals to root 3 into VPH. Yes or no? For star connected system, line current is equals to phase current, but line voltage is equals to root 3 times of phase voltage. Okay, exactly opposite to delta connection. For delta connection क्या है? For delta connection, VL is equals to VPH and IL is equals to under root 3 IPH. Okay, so please keep this in mind. Okay, कुछ भी एक याद रखो अच्छे से. IL is equals to IPH for star connected system. इतना याद रखो. इतना याद रहेगा तो आपको समझेगा कि अपोजिट किसके लिए, उल्टा किसके लिए है, डेल्टा के लिए. सो फॉर स्टार के लिए करंट इक्वल है, मतलब डेल्टा के लिए वोल्टेजेस इक्वल रहेंगे. एंड स्टार के लिए करंट इक्वल है तो वोल्टेज का क्या रहेगा रिलेशन, VL इज इक्वल्स टू रूट 3 VPH एंड IL इज इक्वल्स टू रूट 3 IPH. ठीक है, so this is about star and delta. Okay, now let us see power in three phase. Now in the last our chapter AC circuits, okay, in AC circuits we have studied the different powers like active, reactive and apparent power, and we have seen their formulas. Okay, what is the formula of active power for single phase circuit? Single phase मतलब एक phase, तो उसमें हमारा active power का, active power I will write PA right now. Okay, so active power का हमारा जो formula था वो क्या था, V into I into cos 5. Yes or no? Correct. So for active power the formula of power for single phase is PA, that is active power, is equals to V into I into cos 5. ठीक है. Now if I want to write same equation for three phase तो कैसा आएगा formula? Let us see. If I want to write this formula for three phase, what I have to do? Okay, what I have to do? Phase है ना, three phases है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, VPH IPH means voltage through phase, current flowing through phase. Okay, or voltage across phase and current flowing through phase, that is VPH into IPH into cos 5. ठीक है. Now for three phase this formula is for one phase. Like, wait, I'm saying, I'll tell you. If this is star connection, there are three phases, 1 2 3. Okay, so ये जो फॉर्मूला है, ये जो एक्टिव पावर का फॉर्मूला है, ये एक्टिव पावर का फॉर्मूला सिर्फ फर्स्ट फेज के लिए है या फिर सिर्फ सेकंड फेज के लिए है, मतलब ये एक ही फेज का एक्टिव पावर है. ठीक है, बट अगर तीनों फेज का एक साथ अगर आपको एक्टिव पावर या पावर फाइंड आउट करना है, देन फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएगा, क्या चेंजेस आएगा. सी, ये एक ही फेज के लिए है, अगर मैं थ्री फेज के लिए मुझे फॉर्मूला चाहिए तो क्या आएगा फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, सिर्फ आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस फॉर्मूला बाय 3. यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस फॉर्मूला बाय 3. व्हाई? बिकॉज देयर आर थ्री फेजेस. आर यू गेटिंग? सो if it is asked for single phase, then you have to write VI cos 5. सिंगल फेज मतलब थ्री फेज सर्किट में एक ही फेज के लिए पूछा है तो VPH IPH cos 5. बट इफ टोटल पावर इज आस्क्ड और इन जनरल दे आर सेइंग फाइंड आउट द पावर फॉर थ्री फेज सर्किट, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज 3 into VPH into IPH into cos 5. अंडरस्टूड? सो दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, इतना ठीक है. ठीक है. नाउ suppose they have given, suppose in the numerical they have given the value of VL and IL. VPH IPH दिया नहीं है, they have given you the value of VL and IL and they are asking you to find out power. Okay, तो अभी अगर आपको VPH IPH नहीं दिया है, ये दिया है, तो पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, let us see. Okay, for example
फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज स्टार कनेक्शन, ओके, स्टार कनेक्शन है, VL और IL का वैल्यू दिया है, तो क्या चेंजेस आएंगे, लेट अस सी, ओके, एक्टिव पावर और वी विल राइट टोटल पावर PT, टोटल पावर will be 3 into, now we have to change this VPH to VL and IPH to IL, ठीक है। फर्स्ट लेट अस सी कि स्टार के लिए VPH का रिलेशन क्या है। इफ आई वांट टू चेंज दिस VPH टू VL, व्हाट इज द फॉर्मूला, VL is equals to √3 VPH, that means VPH is equals to VL divided by √3, yes or no, yes, from here देखो क्या किया मैंने, उसको VPH को एक जगह पे रखा एंड आई हैव टेकन दिस √3 the other side, so VL divided by √3, that is VPH is equals to VL by √3. So if I want to write or if I want to replace VPH by VL, what I will write, VPH is equals to VL divided by √3, okay, समझा इतना। Then next IPH, okay, instead of IPH I have to write IL, then how will I write, because this is star connection and for star connection IL is equals to IPH और IPH is equals to IL, so IPH की जगह डायरेक्टली मैं IL लिखूंगी क्योंकि स्टार के लिए दोनों में कुछ भी रिलेशन, क्या रिलेशन है, सेम है, ठीक है। सो आई विल राइट IL into cos 5, okay, now can I write 3 as √3 into √3, है ना, सबको पता है √3 into √3 का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3, सो कैन आई राइट दिस 3 as √3 into √3, ओके, सो √3 multiplied by √3 into VL into IL divided by √3, okay, 1 √3 will get cancelled and what you will get finally, √3 into VL into IL cos 5, okay, यहाँ पे cos 5 है, cos 5, okay, so this will be your total power formula, okay, in terms of line current and line voltage, and total power formula in terms of phase voltage and phase current is this one, ठीक है, please remember this, okay, इसको अच्छे से याद रखना है आप लोगों को, okay, so PA total power in 3 phase फाइंड आउट करने के लिए बोला है, आपको IPH VPH दिया है, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, VL IL दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, कभी कभी दोनों चीजें दिए हैं, सपोज इन अ न्यूमेरिकल VPH IPH is also known, VL and IL is also known, and they have asked you to find out power, total power, okay, now there will be confusion कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, use any one of them, you will get the same answer, okay, use any one of them, you will get the same answer, so कोई भी एक आपको यूज करके पावर को फाइंड आउट करना है, समझ में आ रहा है। और एक चीज इसमें क्या है कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्टिव पावर, राइट, नाउ क्वेश्चन इज व्हाई एम आई यूजिंग एक्टिव पावर, लिसन, if they are asking you to find out in the numerical, if they are just simply asking you find out power, you have to go for active power, not reactive or apparent, why, because active power is the true power, okay, true power or the actual power consumed in the circuit, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है cos 5 वाला। अगर स्पेशली वो लोग पूछते हैं कि फाइंड आउट रिएक्टिव पावर, देन यू हैव टू यूज फॉर्मूला ऑफ रिएक्टिव पावर विच इज क्या आएगा, सेम फॉर्मूला, सिर्फ इंस्टेड ऑफ cos 5 यू हैव टू राइट sin 5। क्या है एक्टिव पावर का, सॉरी रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला V into I sin 5, तो इसके लिए कैसा आएगा फॉर्मूला 3 into VPH IPH sin 5, इसके लिए क्या आएगा √3 VL IL sin 5, समझा। एंड इफ अपरेंट पावर इज आस्क्ड दैट सिंपली V into I, दैट इज VPH into IPH, और 3 फेज के लिए 3 into VPH IPH, इसके लिए √3 VL IL, समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट पावर इन 3 फेज सर्किट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, okay, fine. Now next we are one more thing I would like to tell you over here. If you see here, what is this, this is cos 5, ये क्या है, cos 5 है, and what is cos 5, cos 5 is your power factor, do you remember, power factor मतलब क्या, cos 5, तो can I say total power is equals to √3 into VL into IL into power factor, वैसे भी हम लोग बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो जब भी आपको पावर फाइंड आउट करने के लिए बोला है
in the numerical. And if you don't know the value of cos phi, okay, cos phi का वैल्यू सपोज अननोन है, तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है? बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पावर फैक्टर. तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? cos phi भी है एंड r डिवाइडेड बाय z भी है. ठीक है, तो वो कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम बताऊंगी, बट ये ध्यान में रखना. ठीक है, ओके. नेक्स्ट विल जस्ट डिस्कस, ये तो सबको अच्छे से याद में रखना है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फटाफट we will discuss the list of formulas before we start our numericals. Okay, so list of formulas क्या क्या है इसमें? ऑलमोस्ट सेम है जो हमारा एसी सर्किट्स में है. ठीक है, अभी न्यूमेरिकल्स कैसे पूछते हैं? ओके, दे वोंट गिव यू एनी डायग्राम, वैसे डायग्राम ड्रॉ करो ऐसे कि दे विल से देयर इज अ 3 फेज सिस्टम, दे विल से आइदर स्टार और डेल्टा, कोई भी एक आएगा. सपोज स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, तो व्हाट दे विल से कि इन अ स्टार कनेक्टेड सिस्टम रेजिस्टर is connected in series with inductor. okay, इसका मतलब क्या कि ये 3 फेज है, 3 फेज में 3 रेजिस्टर्स एंड 3 इंडक्टर्स ऐसे कनेक्ट किए हुए हैं. ओके, ध्यान से देखना, ये मैं कंसेप्ट बता रही हूँ, ये समझेगा तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको इजी जाएगा. ठीक है, व्हाट दे विल से इन अ 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम रेजिस्टर is connected to inductor in series. Okay, they will give you the value of resistor, they will give you the value of inductor. Okay, अगर and आपको ये भी देखना है whether it is a balanced system or unbalanced system. Okay, so mostly they give you balanced system, unbalanced का numericals आपको नहीं आता है. एग्जाम में they don't ask unbalanced one, they give balanced one only. and balance कैसे समझेगा? balance मतलब क्या? तीनों लोड का वैल्यू सेम होना चाहिए. मतलब if this is 2 ohms, this has to be 2 ohms, this has to be 2 ohms. If this is 0.1 Henry, this will be 0.1 Henry, this will be also 0.1 Henry. पूरा टोटल जो लोड है वो सेम रहेगा, तो बैलेंस सिस्टम है. समझा? ठीक है, सो समटाइम्स देयर इज ए बैलेंस एंड बैलेंस वॉट. देन और क्या वो लोग बोलेंगे? टू दिस 3 फेज voltage is given, a supply voltage of 240 volts is given. सप्लाई वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट्स इज गिवन. ओके, अभी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो भी वोल्टेज उन्होंने दिया है वो VL है या VPH है, वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा. वेदर वोल्टेज इज गिवन, व्हाटएवर वोल्टेज इज गिवन, वेदर इट इज VL और VPH, वो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि लाइन वोल्टेज इज दिस मच, फेज वोल्टेज इज दिस मच. नो, इनडायरेक्टली वो लोग क्या बोलेंगे कि टू द 3, दिस इज द 3 फेज सिस्टम एंड टू दिस सिस्टम 240 वोल्ट्स सप्लाई इज गिवन. अभी ध्यान में रखना, ये सप्लाई में दिया है. सप्लाई में मतलब किसको दिया है? टू दिस 3 लाइन्स. ओके, अक्रॉस दिस 3 लाइन्स दिस वोल्टेज इज गिवन एज अ सप्लाई. ओके, और ये 3 क्या है? ये लाइन है, फेज नहीं है. फेज इधर है, फेज इज ओवर हियर. आर यू गेटिंग? सो दिस सप्लाई वोल्टेज इज ऑलवेज गिवन टू द लाइन. सो दिस इज नथिंग बट योर लाइन वोल्टेज. ओके, ये सब इतना क्यों बता रही हूँ मैं? बिकॉज न्यूमेरिकल 6 मार्क्स के लिए आते हैं कंपल्सरी. देयर इज 1 क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर. इट इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन. ओके, सो 240 वोल्ट्स इज अ सप्लाई वोल्टेज. सो ऑलवेज रिमेंबर, सप्लाई वोल्टेज मतलब हमारा लाइन वोल्टेज रहेगा, फेज वोल्टेज नहीं. इन केस वो लोग बोल रहे हैं कि देयर इज अ सपोज 240 वोल्ट्स इज appears across the phase, ऐसा कुछ बोला उन्होंने, पर्टिकुलर फेज का नाम लिया, तो ही आपको समझेगा कि वो VPH है. ओके, अदरवाइज इट विल बी VL. द सप्लाई वोल्टेज इज ऑलवेज VL. समझ में आ गया? ठीक है, तो ये है आपका सप्लाई वोल्टेज VL. ठीक है, अभी स्टार कनेक्टेड सिस्टम है तो VPH कैसे फाइंड आउट करोगे? VPH VL इज इक्वल्स टू √3 VPH. तो वो फॉर्मूला यूज करके VPH को फाइंड आउट करो. देन IL वगैरह समझेगा कैसे कैसे फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो इतना समझा आप लोगों को. चलो अभी न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करना स्टार्ट, मतलब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना वी विल स्टार्ट करते हैं. ठीक है, बिफोर दैट होपफुली अंडरस्टूड दिस ना. देयर आर सम फॉर्मूलाज यू शुड नो. ओके, क्या क्या फॉर्मूलाज है? अगर आपको Z फाइंड आउट करना है, व्हाट इज Z? Z इज इम्पीडेंस, राइट? अगर आपको Z फाइंड आउट करना,
sorry. Okay, if you want to find out z in the numerical, okay, what will be the formula? ठीक है, ध्यान से सुनो। ये फॉर्मूला आपको पता है, हम लोग ने एसी सर्किट्स में फॉर्मूला किया है, z इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी दैट एक्स इज व्हाट, रिएक्टेंस। नाउ वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, नाउ इंडक्टिव रिएक्टेंस कब रहेगा? अगर न्यूमेरिकल में उन्होंने बोला है कि इंडक्टर इज कनेक्टेड, दैट मीन्स दिस विल बी इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, इफ दे आर सेइंग कैपेसिटर इज कनेक्टेड, मतलब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इंडक्टर देयर इज कैपेसिटर इन सीरीज विद द रेजिस्टर, देन दिस विल बी योर XC, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूलाज आपको पता है, क्या है फॉर्मूला? XL is equals to 2 pi FL, XC is equals to 1 divided by 2 pi FC. This is the formula. ठीक है, तो R का वैल्यू पता होगा, XC का वैल्यू पता होगा, आप लोग Z फाइंड आउट कर सकते हैं। If XC का वैल्यू is not given but this value of capacitor is given, value of frequency is given, you can find out XC by using this formula. Put the value over here, get the answer for Z. समझ में आ गया? तो ये एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। देन स्टार डेल्टा वाला IL इज इक्वल्स टू IPH और ओके, ये फॉर्मूलाज है। देन पावर का फॉर्मूला जो अभी डिस्कस किया। ठीक है, सो ये सारे फॉर्मूलाज और ये कंसेप्ट अच्छे से ध्यान में रखो, दिमाग में रखो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल। ओके, आई विल रीड दिस आउट फॉर यू। I will not write the question, बहुत यहाँ पे उतना जगह नहीं है हमारे पास। ओके, 3, now listen very carefully, 3 similar coils each of resistance 20 ohms and inductance 0.1 Henry। ठीक है, क्या बोला है? 3 similar coils मतलब क्या? There are 3 coils, okay? Of course 3 फेज है तो हाँ, ऐसे आपको समझना है कि ये 3 फेज सिस्टम का क्वेश्चन है या AC सर्किट से क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी एक चीज़ है, बिकॉज अभी तो आपको समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर का सॉल्व कर रहे हैं, सो दिस इज फ्रॉम 3 फेज, बट इन द एग्जाम यू विल गेट कंफ्यूज कि एसी सर्किट का क्वेश्चन है कि 3 फेज का क्वेश्चन है। तो 3 कॉइल्स होगा या 3 फेजेस बोले होंगे या 3 कंडक्टर्स, ऐसा अगर बोला है, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 3 फेज। ठीक है, 3 सिमिलर कॉइल्स, सिमिलर कॉइल्स का मतलब क्या है? दिस इज बैलेंस्ड सिस्टम, क्योंकि कॉइल्स क्या है? सिमिलर है। ओके, सो देयर आर 3 similar coils, okay, 1 2 and 3 similar coils है, each of resistance 20 ohms and inductance 0.1 Henry। okay, resistance कितना है इसमें? 20 ohms and inductance कितना है? 0.1, are connected in delta, इसलिए मैंने छोटा ड्रॉ किया, हमको पता नहीं है ना। so what they are saying, they are connected in delta, so ये कौन सा सिस्टम है हमारा? डेल्टा सिस्टम। so this is a डेल्टा सिस्टम। इस डेल्टा सिस्टम में 3 phases है, ओके, एंड रेजिस्टर इज कनेक्टेड विथ इंडक्टर इन सीरीज। समझ में आ रहा है? ओके, ऐसा है इनका क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर गिवन? रेजिस्टेंस इज 20 ohms एंड इंडक्टेंस इज 0.1 हेनरी। तीनों में भी सेम रहेगा बिकॉज सिमिलर कॉइल्स बोला है। ठीक है, सो मैं वापस नहीं लिख रही हूँ। ओके, दे आर कनेक्टेड इन डेल्टा टू 3 फेज। ओके, नाउ लिसन, 2-3 phase 440 volts 50 hertz supply system। क्या बोला है? 2-3 phase 440 volts and 50 hertz। 440 volts मतलब क्या? सप्लाई बोला है, 440 volts सप्लाई। सो 440 volts सप्लाई मतलब वो सप्लाई में देंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया? दिस 440 सप्लाई वोल्टेज इज नथिंग बट योर लाइन वोल्टेज। समझा? This is not your phase voltage, this is your line voltage, because this is supply voltage and supply is always given to the line, not to the phase. Okay, so we understood VL is equals to 440 and 50 hertz supply, so frequency is given as 50 hertz। ठीक है, कैलकुलेट, हाँ अभी क्या क्या फाइंड आउट करना है वो बोला है। ठीक है, सो कैलकुलेट फेज करंट। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड फेज करंट। फेज करंट मतलब IPH। सेकेंड, फाइंड आउट लाइन करंट IL। फाइंड फेज वोल्टेज VPH। फाइंड लाइन वोल्टेज
line voltage VL. Then find active power and reactive power. Okay, active power let us say PA and reactive power PR. Okay, so 6 different factors we have to find out. This is a 6 marks question. ठीक है, अभी इतना सब फाइंड आउट करना है और दिया क्या है, VL दिया है, F दिया है और क्या दिया है आपको, वैल्यू ऑफ R इज गिवन, वैल्यू ऑफ R इज 20 ohms एंड वैल्यू ऑफ 0.1 हेनरी, मतलब किसका वैल्यू दिया है, इंडक्टर का। इंडक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, L। व्हाट इज द वैल्यू, 0.1 हेनरी। समझ में आ गया, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। यू डोंट हैव टू ड्रॉ डायग्राम इन योर एग्जाम इन द आंसर। ओके, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है। अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूज होता है तो रफ में डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट। 6 मार्क क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये सब कुछ दिया है। नाउ लेट अस सी हाउ टू go for this numerical. Okay, now पहले तो क्या क्या फाइंड आउट करना है वो पता चला। सो वी विल फर्स्ट व्हाट वी विल फाइंड आउट। ओके, देखो इसमें क्या क्या है, IPH है, IPH इधर कुछ भी नहीं है, IL का भी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, VPH वी डोंट नो, VL यस VL इज गिवन। ओके, सो व्हाट इज VL, VL तो डायरेक्टली हमको क्वेश्चन से ही मिला है ना। VL इज हाउ मच, 440 volts and you will get 1 mark for this much answer which is already there in the question. Okay, so VL is equals to 440 volts. This is the first, okay, first factor we have found out for 1 mark. Second what we will find out, VL पता चला है, क्या हम लोग VPH फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट VPH. नाउ दिस इज व्हिच सिस्टम, डेल्टा सिस्टम। For delta system, what is the relation between VPH and VL? Yes, for delta, VPH is equals to VL and that's why VPH is equals to 440 volts. 2 marks. यहाँ पे 1 mark, यहाँ पे 1 mark है ना, फोकट का मार्क्स है ना। ओके, हो गया। ओके, so VPH मिला। Next what we will find out? Next we will find out IPH. Okay, next we will find out IPH और next we can find out IL also. ठीक है, so दोनों में से क्या कुछ तो एक फाइंड आउट करते हैं, IPH फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड आउट IPH। ओके, IPH को कैसे फाइंड आउट करना है, देखो ध्यान से। ओम्स लॉ पता है सबको, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V is equals to I into R in Ohm's law. Okay, sorry, according to Ohm's law, V is equals to I into R. If I want to find out I, can I take R this side? Okay, so what I will write, I is equals to V by R, correct? Okay, V by R है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। I can use same formula over here. Okay, now only thing is you have to replace this R by Z. You have to replace R by Z. Why you have to replace R by Z? Because यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टर नहीं कनेक्टेड है, उसके साथ इंडक्टर भी कनेक्टेड है और इंडक्टर को भी कुछ रिएक्टेंस होगा। सो यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे टोटल क्या है सर्किट का, इम्पिडेंस है। सो वी हैव टू कंसीडर इम्पिडेंस Z. ओके, सो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला एज V by Z is equals to I. सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो IPH इज V divided by Z. ओके, नाउ ये V कौन सा रहेगा, VL रहेगा या VPH रहेगा? So this will be VPH. Why? Because हम लोग IPH फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो कौन सा वोल्टेज हमको कंसिडर करना पड़ेगा, VPH। समझ में आ गया? So this is how you have to go for this one. So IPH is equals to VPH upon Z. Okay, ठीक है। VPH तो हमको पता है, but we don't know the value of Z. Z का वैल्यू we don't know. So now we have to find out value of Z first. Okay, so पहले Z फाइंड आउट करते हैं। Z का फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी भी बताया था आपको, अंडर रूट Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL आएगा या XC आएगा। यहाँ पे कौन है, इंडक्टर कनेक्ट किया हुआ है ना, दिस इज इंडक्टर है ना, L. सो हियर वी विल गेट XL स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट हियर वी विल सॉल्व. सो Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R इज 20, so 20 स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XL? Do we know value of XL? No, we don't know the value of XL.
So we have to find out value of XL. चलो फाइंड आउट करते हैं. XL का वैल्यू क्या है? What is the formula of XL? 2 pi FL. 2 into pi का वैल्यू 3.14 into फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 into L कितना है, इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे दिया है 0.1 हेनरी. ओके, इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट XL as XL का वैल्यू क्या है, yeah it is 31.41. प्लीज कैलकुलेट. ना आप लोग कैलकुलेट करो, आपके पास कैलकुलेटर्स है, प्लीज कैलकुलेट. ओके, सो वैल्यू ऑफ एक्सेल इज 31.41. ओके, नाउ अभी एक्सेल का वैल्यू पता चला. कैन आई पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्सेल ओवर हियर. नाउ आप लोग एग्जाम में ऐसे मत करो कि यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे सॉल्व किया, फिर वापस यहाँ पे आ गए. तो उनको कैसा होगा जब चेक कर रहे हैं कि पहले अननोन वाला लिखा फिर उसको फाइंड आउट किया, ऐसे मत करो. राइट दिस स्टेप आफ्टर दिस स्टेप. ओके, आई गेटिंग, मैं इधर ही लिख रही हूँ. ठीक है, सो आई पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेल ओवर हियर. तो वैल्यू ऑफ एक्सेल क्या है 31.41 होल स्क्वायर. समझा. नाउ इसका वैल्यू कैलकुलेट करो तो z का वैल्यू क्या मिलेगा. वैल्यू ऑफ मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ. ओके, प्लीज राइट दिस एज ZPH. फेज इम्पीडेंस है तो ZPH लिखेंगे उसको. ठीक है, सो वैल्यू ऑफ Z इज 37.23 ohms. 37.23 ohms. Here also ohms आपको लिखना है. Don't forget to write the units. मार्क्स कट हो जाएंगे आपके. ठीक है, सो ZPH इज 37.23 ohms. अभी क्या करना है, you have to put this value of ZPH over here and then you have to find out IPH. Okay, so IPH is equals to VPH upon ZPH, VPH upon ZPH, which is equals to, what is VPH? VPH का वैल्यू कितना है 440. so 440 divided by ZPH is 37.23. So value of IPH, okay, please use your calculators. I am directly writing 11.81 amperes. एम्पियर्स किसका वैल्यू IPH का वैल्यू है. ठीक है, अंडरस्टूड. IPH का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया. ओके, बहुत सारे स्टेप्स है उसमें, तो वो स्टेप्स आपको अच्छे से लिखने हैं, अच्छे से फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो आई विल रिपीट द प्रोसेस टू फाइंड आउट IPH. IPH का फॉर्मूला है VPH अपॉन ZPH. ओके, देन we don't know the value of ZPH, but we know the value of formula of ZPH. ZPH is equal to under root R square plus XL square. Okay, find out ZPH, but to find out ZPH we should know value of XL. We don't know the value of XL, so put the formula of XL and find out its value. Then put value of XL over here in this formula, find out ZPH. ZPH मिला. ZPH मिलने के बाद put the value of ZPH in this formula to find out IPH. So what is the value of IPH? 11.81. Okay, please take a screenshot. ठीक है, so now I'll erase this and मैं यहाँ पे IPH का वैल्यू लिख के रखती हूँ क्योंकि हमको आगे इसका वैल्यू लगेगा. IPH क्या मिला हमको 11.81 amperes. फाइन. Next, what we have to find out? IPH हो गया. Now what we have to find out? IL. Okay, can I find out IL easily? है ना? So IL का वैल्यू क्या आएगा? What is the relation? This is delta. So for delta, what is the relation between current? IL is equals to √3 IPH. Okay. So what is the value of IPH? IPH is 11.81. 11.81. So what will be the answer of IL? Please calculate. It is 20.54 amperes. What is the value? 20.54 amperes. Okay. तो ये आ गया हमारा फोर्थ आंसर मिल गया.
4 मार्क्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ठीक है। ये IL भी फटाफट लिख के लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज एक्टिव एंड रिएक्टिव, ओके। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्टिव पावर फॉर 3 फेज? 3 फेज के लिए एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है हमारा? वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ IL, VL और IPH, VPH कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलो IL VL लिखते हैं। सो √3 VL IL cos phi is the formula of active power, है ना। cos phi VL √3 VL IL cos phi is the value of formula of active power, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमको क्या क्या पता है? √3 तो कांस्टेंट है, VL का वैल्यू इज नोन, IL वैल्यू इज नोन, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ cos phi. To find out active power, we don't know the value of cos phi. तो पहले cos phi को फाइंड आउट करो. What is our cos phi? Cos phi is nothing but पावर फैक्टर. पावर फैक्टर का क्या क्या फॉर्मूलाज है मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है. पावर फैक्टर के 2 फॉर्मूलाज है, वन इज cos phi, अदर इज yes R by Z. Okay, so cos phi is equals to R by Z. What is the value of R? R is 20 ohms. Z is how much? Z कितना मिला था हम लोगों को? चेक लो. Z is 37.23. Okay, Z is 37.23. So if you calculate this, you will get cos phi is equals to 0.5372. The value is 0.5372 is the value of your power factor or cos phi. समझ में आया? Now I can put this value over here and we will get the answer. Okay, तो क्या आएगा आंसर? देखो, PA is equals to √3. What is the value of VL? 440. √3 into 440 into IL का वैल्यू क्या है? IL का वैल्यू भी इरेज किया, तो लेट अस सी IL का वैल्यू है 20.45. 20.45 into value of cos phi is 0.5372. Okay, so the value of active power after calculation is 8371.51 watts. The value of active power is 8371.51 watts. This is how you have to find out active power. ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को? एक स्क्रीनशॉट लेना है, बाद में सॉल्व करना है. ओके, अच्छे से बुक में सॉल्व करना है. न्यूमेरिकल सारे बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल्स है. ओके, ये हो गया हमारा एक्टिव पावर. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट रिएक्टिव पावर. एक्टिव पावर इज ओवर. नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट रिएक्टिव पावर. ठीक है, now let us see what is the formula of reactive power. Okay, reactive power का फॉर्मूला क्या है? सेम फॉर्मूला, सिर्फ जहाँ पे cos phi है वहाँ पे आपको क्या पुट करना है? sin phi. This is the formula of reactive power. ठीक है, put the values. Okay, now we know the value of VL and IL, but we don't know the value of sin phi. अभी sin phi को कैसे फाइंड आउट करेंगे? cos phi तो ठीक है, फॉर्मूला था R by Z, बट sin phi को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, जो cos phi का वैल्यू हम लोगों को मिला था, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ cos phi? cos phi इज 0.5372. ध्यान दो कैसे फाइंड आउट करना है. देखो, cos phi, वैल्यू ऑफ cos phi is 0.5372. Okay, now what I will do, I'll keep this phi over here, I'll take cos the other side, so it will become cos inverse of 0.5372. यहाँ से आप बोलोगे ये करके क्या होगा मैम? So from here what will happen, you know, this we will get the value of phi, मतलब एंगल मिलेगा. अगर उस एंगल का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हो तो आप अपने आप आपको sin phi का वैल्यू मिलेगा. यू गेटिंग? एंड sin phi का वैल्यू मिलने के बाद we will get value of
reactive power. Okay, so what will be the value? Cos inverse of 0.5372 is 57.51. So value of phi, that is value of angle, is 57.51. समझ में आ गया? So put करो यहाँ पे PR is equals to √3 into VL is 440 into IL is 20.45 into साइन का एंगल कितना मिला है? यहाँ से हम लोगों का एंगल कितना मिला है? 57.51. सो 57.51 साइन 57.51 का कुछ तो हमको वैल्यू मिलेगा. सो डायरेक्टली आई एम राइटिंग दी वैल्यू. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यू विल गेट 1314.5.71. ओके, what is the value of PR1, that is reactive power 1314.5.71 and the unit is VAR. Okay, unit is VAR. समझ में आ गया इसका रिएक्टिव पावर का? ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपरेंट पावर में. ठीक है, यूनिट क्या क्या होते हैं. ठीक है, सो ये याद रखना आप लोगों को. सो अभी हमको हमारा PR भी मिला. सो 6 marks कंप्लीट हो गए. समझ में आ गया? So this is you have to solve, or this is how you have to solve, this is the procedure. Okay, and you have to read the question very well. क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, इंडक्टर दिया है या कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन है या स्टार कनेक्शन है. बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें जो है वो क्वेश्चन में ही रहती है. एंड फ्रॉम क्वेश्चन ओनली यू विल गेट 2-3 marks you will get from question only. क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वही आपका आंसर रहता है, तो उधर से ही 2-3 marks मिल जाते हैं. समझ में आ गया? बस बीच में छोटी छोटी चीज़ें हैं. ओके, जिसके लिए अलग फॉर्मूलाज यूज़ करके आपको फाइंड आउट करना है. बट इफ़ यू प्रैक्टिस दिस इज़ वेरी इजी. जस्ट इट विल टेक, इफ़ यू कैलकुलेट इन द कैलकुलेटर फटाफट से, इफ़ यू कैलकुलेट देन इट विल टेक मैक्सिमम 5 minutes टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर 6 marks. ओके, सो ये हो गया हमारा एक प्रॉब्लम. अच्छे से प्रैक्टिस करो. ठीक है, नाउ और कुछ प्रॉब्लम्स है वो आपको मैं सॉल्व करने के लिए दूंगी, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके.